Welcome everyone. Let's start our next topic, that one related with the our previous topic sentence. Okay? ये जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये हमारे प्रीवियस टॉपिक जो था हमने लिया था सेंटेंस, उसी का ये पार्ट है. नाउ सो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सब्जेक्ट एंड predicate. What is the subject and predicate? It is a common answer, and mostly students confused with this, that what is the subject and what is the predicate. Firstly, you know very well that all the sentences have an subject and a predicate. What is the predicate? Subject you know, I think, but mostly you confuse with predicate. Now, a predicate have a verb and gives the answer that what the subject is doing. जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें क्या बताता है? सबसे पहले तो वो एक वर्ब या एक्शन वर्ब को लेकर साथ में आता है, एंड नेक्स्ट थिंग वो हमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देता है. एंड यू नो व्हाट द सब्जेक्ट द मेन पार्ट एंड द डूयर ऑफ द सेंटेंस. जो सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है पर्सन, दैट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बोथ कैन बी आवर सब्जेक्ट. सो द पर्सन और द थिंग्स दैट इज द डूयर ऑफ द सेंटेंस, दैट वन कॉल्ड इज सब्जेक्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. So students, how many parts of the sentence? There are the two main parts of the sentence, subject and predicate. I told you that what is the subject and what is the predicate. Here is the example. Suhana is a good girl. Suhana is a good girl. Here Suhana is a subject and is a good girl is predicate. Now look here everyone. Predicate, I told you predicate has a helping verb, okay, and told that what या how is our subject, and Suhana, we are talking in this sentence about the Suhana. इस sentence में हम किसकी बात कर रहे हैं? सुहाना की. So Suhana is our subject and is a good girl is our topic. Now, subject, the parts of a sentence which tell us what the sentence is about. In short, we can say naming part of the sentence. Naming part. What is the naming part? This one is Suhana is naming part. So naming part is our subject. Okay. Predicate, the part of a sentence which tell us something about the subject. सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें हमारे सेंटेंस के बारे में बता रहा है वो होता है प्रेडिकेट. एंड इन शॉर्ट वी कैन से डूइंग पार्ट. जो काम होने वाला जो हमारा पार्ट है, जो काम होने वाला पार्ट है वो हमारा डूइंग पार्ट होता है और उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. नेमिंग पार्ट इज सब्जेक्ट एंड डूइंग पार्ट इज predicate. Now I hope you have understood. Now move forward. The order of the subject and predicate. The order of the subject and predicate what is that हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे प्लेस होते हैं ये देख लो आप. यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. मोस्टली जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है. ठीक है, लेकिन सम रेयर केसेस में, in other word we can say that to emphasize the predicate, जब कभी हम predicate पर फोर्स करते हैं, predicate के बारे में ज़्यादा हमें बताना होता है, तब हम उस predicate को subject से पहले प्लेस करते हैं. It means we place the predicate just before the subject. subject से पहले हम predicate को प्लेस कर देते हैं. Here is the example. In that jungle lived a lion. And you know, I mention here a lion is subject. In this sentence we are talking about the lion. इस सेंटेंस में हम उस lion की बात कर रहे हैं.
इन दैट जंगल लिव्ड, उस जंगल में जो शेर रहता है, रहता था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो अ लायन इज आवर सब्जेक्ट एंड इन दैट जंगल लिव्ड इज आवर प्रेडिकेट. नाउ let's move forward in imperative sentence. As you know, there are the 4 types of sentence. I told you already that the imperative sentence, what is the function of imperative sentence? The function of the imperative sentence to give the command order. In imperative sentence the subject is not mentioned. जो हमारा imperative sentence होता है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मेंशन नहीं होता है. हियर इज द एग्जांपल, गो टू स्लीप. वी आर लुकिंग दैट देयर इज द नो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज हिडन. थैंक यू, हियर इज ऑल्सो द अनदर एग्जांपल दैट हैव नो सब्जेक्ट. इन राइट फॉर्म, यू गो टू स्लीप. आई एम गिविंग द ऑर्डर टू यू दैट यू गो टू स्लीप. मैं आपको ऑर्डर कर रही हूं कि अब आप सोने जाओ. एंड दैट इन शॉर्ट वी कैन से गो टू स्लीप. ओके, एंड whenever you anyone say that find out the subject in this sentence, then you can say you is the subject in this sentence. Thank you. अगर सपोज किसी ने आपको कुछ गिफ्ट किया हुआ है, then you say thank you. and what is the subject in this? आप थैंक यू बोल रहे हो नेक्स्ट पर्सन को, इट मीन्स आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो हियर इज आई थैंक यू. नेक्स्ट, इट इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. मैंने आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए ये चीज़, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये कुछ फंडामेंटल दिया हुआ है कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट कैसे करेंगे. आप किसी भी सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पार्ट इसका सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट इसका प्रेडिकेट है. this is the subject, okay, and next this is the predicate. Here is the 2 arrow showing the function. Subject, give the answer of who or what. अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर हम सब्जेक्ट में ये 2 क्वेश्चन, ये 2 WH वर्ड्स लगा देते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, इट मीन्स वी कैन से दैट वी कैन फाइंड आउट द सब्जेक्ट यूजिंग दीज 2 WH वर्ड्स. सपोज हियर इज द 2-3 एग्जाम्पल्स आई रोट इट हियर. सुहाना इज ए गुड गर्ल. वी कैन यूज द who is a good girl. okay, who is good girl. तो आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट किया. अगर आप यहां पर who का यूज करेंगे देन यू कैन फाइंड समथिंग. नो, who is good girl. ठीक है, who is good girl आपका आंसर आएगा सुहाना. तो आप अगर प्रेडिकेट में who लगा रहे हैं या what लगा रहे हैं, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा आपका सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट. अब हमें प्रेडिकेट कैसे पता करना है उसकी ट्रिक देख लीजिए. कंटेन्स द वर्ब्स. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, वो एक्शन वर्ब हो या आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, उसके साथ स्टार्ट हो रहा होगा. ठीक है, और वो कुछ ना कुछ, इट मीन्स टेलिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. वो आप जो आपका स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताएगा. इट मीन्स द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट काम कर रहा होगा उस सेंटेंस में, उसके बारे में बताएगा. कंटेन्स द वर्ब्स एंड गिव द आंसर दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. प्रेडिकेट में आपको क्या पता करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, तो व्हाट का आंसर देगा. ठीक है, अब आप सब्जेक्ट में व्हाट लगाइए. व्हाट सुहाना इज. ओके, आपका आंसर आएगा इज अ गुड गर्ल. सुहाना क्या है, इज अ गुड गर्ल. तो आपको जब आप सब्जेक्ट पता करेंगे तो प्रेडिकेट से आंसर पूछेंगे, और जब आप प्रेडिकेट पता करेंगे तो सब्जेक्ट से आंसर क्वेश्चन करेंगे, और इससे जो निकला हुआ आंसर होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, और इससे जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका सब्जेक्ट होगा.
चलिए कुछ क्लू मैं और आपको दे रही हूँ. इट मीन्स सम एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग एंड होप दैट यू आर trying to find out the examples through find out the subject and predicate. As we divided the sentence part, जैसे कि हमने अभी सेंटेंस के पार्ट किए थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं. वो देखिए कैसे. यहां पर एक तो हमारा आ जाता है डिटरमाइनर्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडजेक्टिव्स, और हमारा थर्ड वन आ जाता है हेड वर्ड्स. चलिए, दीज वर्ड्स आर नॉट न्यू फॉर यू बट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. डिटरमिनर्स. डिटरमिनर्स क्या होते हैं? आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी पोजीशंस होते हैं, आपके डिटरमिनर्स में आता है आपका आर्टिकल, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, और इसमें आपका आता है पजेसिव, क्वांटिफायर्स, जैसे कि सम, लिटिल, इनफ. ठीक है, पजेसिव होता है आपका हिज, हर, माय, योर. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव आपके दिस, दैट, these and those. आर्टिकल्स आपके ए, एन एंड द. नेक्स्ट आपका आता है कॉर्डिनल नंबर. नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस वन. एंड एडजेक्टिव. व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट tells us about a noun or pronoun. तो beautiful, any color name, black, red, blue, white, this type. Okay, ugly. Now head words. head words क्या होता है? any noun. ठीक है, जो हमारा कोई भी नाउन होता है वो हमारा हेड वर्ड्स होता है. एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, दैट वन कॉल्ड इज एडजेक्टिव्स. एंड डिटरमिनर्स क्या होते हैं? आई रोट हियर आर्टिकल्स, ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, दिस, दैट, दोज, दिस, possessive, his, her, my, your, quantifiers, some, little, enough, like this type. Cardinal number 1, 2, 3, 4 and 6, and last one is ordinal number. What is the ordinal number? First, second, third. Now here I am giving some example related with these
3 टॉपिक्स, ठीक है, कि हमारे एक ही सब्जेक्ट में ये तीनों चीज़ें भी यूज़ होती हैं। वो देखिए कैसे, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, बॉय इज playing. Okay, boy is playing. What is the subject in this sentence? Boy, and is playing is predicate. This is the predicate and this is the subject. Okay, now next example is a boy is playing. What is the A? A is article. Okay, a boy. A and boy is our subject and is playing is our predicate. Now third one is a fat boy is playing. A fat, sorry here, boy. A fat boy is playing. What is the similarity in this sentence? Sorry, in this sentence, boy is playing, a boy is playing, a fat boy is playing. As I told you that there are the 3 parts of a subject. जैसे हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के 2 पार्ट थे, ठीक है। सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स थे, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स एंड हेडवर्ड्स। अब देखिए, बाय चांस these 2 words indicator not come in every sentences, but headwords comes in every sentences, simple sentence और another type sentences। जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो सिंपल हो या किसी दूसरे टाइप से रिलेटेड हो, उसमें आपका हेडवर्ड्स जरूर आएगा, ठीक है। डिटर्मिनर्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एडजेक्टिव्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट हेडवर्ड्स आपको हर सेंटेंस में मिलेगा। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव। आर्टिकल का यूज मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल का यूज कहाँ है आपका? ए बॉय इज प्लेइंग। सपोज वी आर टॉकिंग ए बॉय, व्हेन वी emphasize a particular boy, then we can use the boy is playing. Okay, demonstrative, this black pencil is broken. Okay, this black, this is determiner, black is adjective, is broken, it means predicate, is broken is predicate. Possessive, his, her, my, your. Your father is standing there. Your father is standing there. Your father is subject. Is standing there is our predicate. Quantifiers, some, little, enough. I have enough water. I have enough water. Now, sorry, some boys are playing in the ground. कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं. दिस इज द क्वांटिफायर्स. हमें एक मात्रा बता रहा है ये कि कुछ लड़के वहां पर खेल रहे हैं. कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4. ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. सपोज फर्स्ट फ्लोर इज डेकोरेटेड. जो पहला फ्लोर है वो डेकोरेट हो गया है, तो फर्स्ट फ्लोर इज अवर सब्जेक्ट, इज डेकोरेटेड इज अवर प्रेडिकेट. नाउ आई एम गिविंग 2-3 एग्जांपल्स. A boy wearing the blue cap. Blue cap is my
brother. Try to find out the subject and object in this sentence. इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है. अ बॉय वियरिंग द ब्लू कैप इज माय ब्रदर. इसमें सेंटेंस में आपका अ बॉय से लेकर ब्लू कैप तक आपका सब्जेक्ट. ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि आपका जो सब्जेक्ट है आप ये सोचें कि वो वन वर्ड में होगा, तो ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट आपका वन वर्ड में ही आएगा. हम जिस पर्टिकुलर पर्सन के या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका 2-3 से अबव भी आपका सब्जेक्ट जा सकता है. 2-3 वर्ड से अबव भी आपका सब्जेक्ट जा सकते हैं. तो अब बॉय वियरिंग द ब्लू कैप, वो लड़का जो ब्लू कैप पहने हुए है वो मेरा भाई है. एंड इज माई ब्रदर इज अवर प्रेडिकेट. Remember one time more, what is the subject, naming part, and what is the predicate, doing part. I hope that you are enjoying your online classes, and I want to say that prepare all the topics explained by me clearly. Thank you.